Everyone, I am Muhammad Salim and this is part second of the video covering the basic aspects of geography including maps particularly. So in previous lecture we studied about the history of cartography, then maps, then scales, then types of maps, then locating places, then symbols and shades. Then we studied map projections, choice of map projections, and now we will learn some other aspects like exploring the universe, life of a star, solar system, Milky Way, planet Earth, the moon, effect of the moon on the earth, seasons and earth sun relations. So please listen it carefully. First heading is exploring the universe. The universe is beyond our imagination. It is mostly empty space. This space contains everything from the tiniest subatomic particle to galactic substructures. It is estimated that the universe contains 100 billion galaxies, each of which comprises 100 billion stars. The universe probably came into existence about 10 to 20 billion years ago. Then the life of a star. A galaxy is a huge mass of stars, nebulae and interstellar dust and gases. गैलेक्सी क्या है? ये एक मास है. किसका बना होता है? स्टार्स का, नेबुला का, इंटरस्टेलर डस्ट का और गैसेस का. Nebulae are clouds of dust and gas, mainly the hydrogen and ionized hydrogen that float in space. Often the force of gravity pulls the particles of gas and dust closer into a swirling mass. If the mass is heavy enough, the spinning cloud will start to glow. चमकना शुरू हो जाएगा अगर मास जो है वो हैवी है बहुत, ठीक है ना. तब ये जो क्लाउड घूम रहा है ये चमकना शुरू हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड प्रोटोस्टार at the first stage before a star is born, ठीक है ना. Stars are self-luminous bodies of hot and glowing gas, and the gas is hydrogen born inside the nebulae itself. Our sun is a small star. Massive stars may have a mass of at least 3 times that of the sun, and some stars as massive as 50 times the sun exist. Stars produce energy by nuclear fusion at the core. After millions to billions of years, when the hydrogen starts running out, the core contracts while the outer portion continues expanding. The star is now called a red giant. The amount of mass a star has determines the rest of its life cycle. The cores of low mass stars collapse, expelling the outer layers, which form a nebula. The core remains as a white dwarf and eventually cools to become a black dwarf. कोर पहले वाइट dwarf होती है, बाद में ठंडी होकर ब्लैक dwarf बन जाती है. A massive star will undergo supernova explosion. If the remnant of the explosion is 1.4 to 3 times as massive as the sun, it will become a neutron star. After the explosion, a star with a core more than 3 times the sun will be swallowed by its own gravity. It now becomes a black hole which can readily attract any matter or energy that comes near it. What is Milky Way? Our galaxy is called the Milky Way galaxy because it looks like a splash of milk in the sky. ठीक है ना. In the night, a faint band of light is visible in the northern sky. This dim light comes from the nebula and stars. The galaxy is vast, measuring about 1 lakh light years across. And you know the 1 light year is approximately 9,460 billion kilometer. It is a distance. 1 light year is equal to 9,460 billion kilometer. So the galaxy, this Milky Way, is vast, measuring about 1 lakh light years. Our galaxy is spiral shaped disk
with a bulge at the center, sending 4 arms spiraling outwards. Here, this is one diagram. You can see here. So this is the solar system. Our solar system is located in the Orion arm, or say the local arm, around 2/3 from the central bulge of the Milky Way, which turns once every 220 million years. The age of the solar system is 4.6 billion years. ठीक है. The solar system comprises a central star, the sun, and the bodies that orbit it. The bodies in the solar system include 8 planets and their 61 known moons, asteroids, meteorites, and comets, as well as interplanetary gas and dust. The solar planet can be divided into an inner system of 4 small solid planets, including the Earth, and an outer system comprising the 4 much larger planets from Jupiter to Neptune, which consist of light material. Okay, so 4 inner, 4 outer. So this you can see here. This one is the sun. After the sun, the planet are Mercury, Venus, Earth, Mars. These are the inner one. Then asteroid belt come. This is here series. Then Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune comes. These are the outer ones. Here between Saturn and Uranus there is comets. Then Makemake also available. Then Pluto. Here comes the Kuiper belt objects. Here it is Eris. The solar planets, yes. Between the above two planetary system is a belt of asteroid containing a pieces of rock varying sizes. All the planets along with their satellites orbit the sun in the anti-clockwise direction if viewed from above. अगर ऊपर से देखें तो वो anti-clockwise direction में मूव कर रहे होंगे सारे ऑर्बिट अपने सैटेलाइट के साथ. ठीक है ना. सन के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे. द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU करंटली रिकॉग्नाइजेस 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स. ठीक है. कौन कौन सा? सीरीज, प्लूटो, होमिया, मेकमेक एंड एरिस. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है IAU वो फ़िलहाल 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स को जो है रिकॉग्नाइज करती है. उनमें आ गया नंबर 1 सीरीज, देन प्लूटो, देन होमिया, देन मेकमेक एंड देन एरिस. You can see here the diagrams of some planets. Here Mercury very small, Venus also very small, Mars also small, Earth small asteroid. This is Jupiter, somewhat big. Then comes Saturn, its shape is like this. This one is Uranus, and then Neptune, this one. So this is the planet Earth. We can discuss about it. The Earth emerged from a swirling nebula of interstellar gas and dust along with the sun and other bodies in our solar system. Countless teeny mineral grains collided with each other under the force of inherent gravity and condensed into larger planets like the Earth. Okay. The Earth is the third planet from the Sun and the only known planet to sport life. The Earth looks like a spheroid but is flatter at its pole, making it an oblate spheroid with an equatorial diameter of 12,756 km and a polar diameter of 12,714 km. 12,756 किलोमीटर इसका इक्वेटोरियल जो डायमीटर है और पोलर डायमीटर है 12,714 किलोमीटर. इट रोटेट्स वंस ऑन इट्स ओन एक्सिस tilted at an angle of 23.5 degrees every 23 hours 56 minutes and orbits around the sun in
in an ellipse in 365 days 6 hours 8 minutes। ठीक है, ये अपनी एक्सिस पर जो है ये रोटेट करता है सन, सॉरी ये अर्थ रोटेट करता है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है और ये उस वक्त टिल्टेड होता है, मतलब कि थोड़ा एंगल में टेढ़ा सा होता है। कितना एंगल वो बनता है 23.5 डिग्रीज़ का, ठीक है ना। और ये जो है पूरी रोटेशन का कितना टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट और हाँ 23 घंटे 56 मिनट। तो उसके बाद जो है सन के इर्द गिर्द भी ऑर्बिट करता है, उसको टाइम लगता है 365 दिन 6 घंटे 8 मिनट, 365 दिन 6 घंटे 8 दिन। ये आप देख सकते हो, ये अर्थ का बनाई है शेप, ठीक है ना। ये उसकी एक्सिस है, ठीक है, नॉर्थ पोल में। फिर ये साउथ पोल आ गया, तो ये आ गया नॉर्थ साउथ वाला ये, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ। देन फिर ये इक्वेटर वाली लाइन आ गई, दिस वन। फिर ये अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कि सीजन्स एंड अर्थ सन रिलेशन, सीजन्स कैसे आते हैं, सर्दी गर्मी ये सारे, और अर्थ सन का रिलेशन क्या है। द एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑफ 23.5 डिग्री एज इट मूव्स अराउंड द सन काजेज सीजनल चेंजेस। ये जो 23.5 डिग्री की टिल्ट है, एक्सियल टिल्ट अर्थ की, ठीक है ना, जब ये सन के इर्द गिर्द घूमती है तो इसी की वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ओवरव्यू जो है इसकी डायरेक्शंस दी गई है, ये कैसे थोड़ी टिल्टेड है, सेंटर में से लाइन देख सकते हो, ये थोड़ी अर्थ जो है ये टिल्टेड है, ठीक है ना, टेढ़ी सी है। When in June the northern hemisphere tilts towards the sun, it gets maximum heat while the southern hemisphere gets little heat। तो जून में मरते के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सूरज की तरफ टिल्ट करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम हीट मिलती है उसको, लेकिन सौदर्न हेमिस्फीयर को कम हीट मिलती है, ठीक है ना। इट इज़ दस समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सौदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न में इसलिए वहाँ पे गर्मी होगी और सौदर्न में सर्दी होगी। 6 months लेटर दिसंबर में द सिचुएशन इज़ रिवर्स्ड एज द अर्थ travels halfway around the sun and its northern hemisphere is tilted away from the sun, ठीक है ना। 6 महीने बाद दिसंबर में जब सिचुएशन रिवर्स होगी, इस अर्थ जो है वो ट्रैवल करेगी मतलब कि सन के इर्द गिर्द ज़्यादा, और उससे क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द सन, नॉट टुवर्ड्स द सन। 21 जून को क्या होगा, ऑन 21 जून द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इट इज़ मिड समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मिड समर इन द सौदर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन 22 दिसंबर व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज़ 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है ना। 21 जून को क्या होता है कि 21 जून को ये होता है कि सन जो है पूरा सर के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23.5 डिग्रीज़ नॉर्थ, ठीक है ना, लैटिट्यूड। तो उस वक्त होता है 21 जून को सन इस पूरा इसके ऊपर, और इस वक्त जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है। तो मिड समर जो है सौदर्न हेमिस्फीयर में वो 22 दिसंबर को आता है, ठीक है ना, जब सन जो है पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि ये है 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है ना। और हाँ यह स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च, और ये नीचे जो है ऑटम इक्विनॉक्स ये 23 सितंबर को। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को और ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को, ठीक है। और इधर 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है और इधर 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होता है, ठीक है। ये सन की रेज़ हैं ऐसे ऐसे पड़ती हैं, ठीक है।
इसके ऊपर जा रही हैं, ये थोड़ा टिल्ट पे है, सेम इस तरफ भी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द नार्दर्न हेमिस्फीयर समर सोल्स्टिस, ये जो 21 जून वाला समर सोल्स्टिस है, ठीक है, नार्दर्न हेमिस्फीयर में जब होता है। द एरिया विद इन द आर्कटिक सर्कल हैज़ 24 आवर सनलाइट, जो आर्कटिक सर्कल में एरिया होता है उसमें 24 घंटे जो है सनलाइट चलेगी। वाइल दैट विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल हैज़ 24 आवर डार्कनेस। जब मतलब कि ये समर सोल्स्टिस चलेगा नार्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे 21 दिसंबर को होता है, तो आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्थ में होता है, मतलब कि उसमें 24 घंटे सनलाइट होगी, लेकिन जो एंटार्क्टिक सर्कल होगा साउथ में, उसमें 24 घंटे रात होगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं, ये तो ऊपर आ गया विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को, ठीक है ना। लिखा हुआ क्या कि जब नार्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होगा, सिचुएशन उलट होगी। एट आर नियर द इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर, इसमें रात और दिन बराबर होंगे, ठीक है ना, इक्वेटर के पास, और ये पूरा साल जो है ये इक्वल ही रहेंगे डे एंड नाइट। ये कुछ मून की आप डायग्राम देख सकते हो, ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द कैसे मून जो घूमता है, ठीक है ना। इसके आगे नाम है डिफरेंट के, पहला जो है फर्स्ट क्वार्टर होता है चांद का, फिर गिब्बस, फिर जब फुल मून आ जाता है फिर गिब्बस, फिर लास्ट क्वार्टर, फिर क्रिसेंट, फिर न्यू मून, नया चांद, ठीक है ना। ये इसकी स्टेजेस होती हैं, ये सनलाइट इसके ऊपर पड़ती रहती है, ठीक है ना। तो मून गोज़ अराउंड द अर्थ, दिस टेक्स 27 डेज, 27 दिन में जो है मून वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना। तो ये नीचे थोड़ा देख लेते हैं, सन है, ये मून है, ठीक है ना। ये टाइड वगैरह आती हैं, ठीक है, स्प्रिंग टाइड होती है, नीप टाइड होती है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जब नया चांद आता है, न्यू मून, वो कैसा दिखता है ऐसे, फिर फर्स्ट क्वार्टर ऐसा हो जाता है, फुल मून ये पूरा दिखता है, फिर थर्ड क्वार्टर ऐसे करते करते कम, फिर नया, ठीक है ना। वैक्सिंग क्रिसेंट, वैक्सिंग गिब्बस, वेनिंग गिब्बस, वेनिंग क्रिसेंट, ठीक है ना। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विद अ डायमीटर ऑफ 3470, 3470 किलोमीटर का डायमीटर होता है और चांद का, और ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है ना। इट रोटेट्स मोर स्लोली देन द अर्थ, अर्थ से बहुत स्लो रोटेट करता है। इन टेक्स अ लिटल ओवर 27 डेज टू रोटेट वंस, एक बार घूमने को 27 दिन लगते हैं तकरीबन, ठीक है ना। सिंस इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट ऑलवेज प्रेजेंट्स द सेम फेस और हेमिस्फीयर टू द अर्थ, ठीक है ना। क्योंकि इसको बिल्कुल सेम दिन लगते हैं, उसको मतलब कि बिल्कुल फिक्स टाइम में ये अर्थ के इर्द गिर्द हर बार घूमता है, इसलिए जो है ये एक ही फेस या हेमिस्फीयर जो है अर्थ को दिखाता है, ठीक है ना। द इंटरवल बिटवीन वन फुल मून एंड द नेक्स्ट इज़ 29.5 डेज, ठीक है ना। जो फासला होता है बीच में एक पूरा चांद और एक अगला चांद होगा, ठीक है ना, 29.5 डेज होता है। द मून सीम्स टू हैव डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग पोजीशन इन रिलेशन टू द अर्थ, ठीक है ना। इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है अर्थ के कंपैरिजन में, तो इसका जो है शेप्स अलग होंगी, कभी थोड़ा सा दिखेगा नया चांद, कभी पूरा चांद, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। दीज डिफरेंट शेप्स आर नोन एज फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। और अभी हम ये देखेंगे कि चांद का अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, द इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, ठीक है ना। द डेली राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन टाइड्स आर द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, द पुल ऑफ द मून इज़ मच स्ट्रांगर दैन दैट ऑफ द सन। कि डेली जो समुद्रों में टाइड्स आती हैं ना, ठीक है ना, ये किस वजह से आती हैं, ये चांद और सूरज का ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से, लेकिन चांद का पुल जो है ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है सूरज के कंपैरिजन में, ठीक है ना। मून जो है उसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है ये टाइड समुद्रों पे लाने के लिए, ठीक है ना। द इफेक्ट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑन द हेमिस्फीयर फेसिंग द मून एंड काज अ टाइडल बल्ज, ठीक है ना। वो हेमिस्फीयर जो मून की तरफ मुड़ा हुआ उस पे जो है ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसको टाइडल बल्ज हो जाएगा फिर, ठीक है ना।
एज द अर्थ स्पिन, जैसे अर्थ स्पिन करेगी, प्लेसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द बल्जेस एंड देयर सी लेवल राइजेस एंड फॉल्स। मोस्ट प्लेसेस हैव 2 हाई टाइड्स अ डे when the moon and sun fall in line with the earth and exert a combined force, spring tides occur। जब चाँद और सूरज जो हैं वो अर्थ के साथ ही जो है फॉल इन लाइन विद अर्थ से मिलते हैं, ठीक है ना, तब जो है दे एक्सर्ट अ कंबाइंड फोर्स, जिसको स्प्रिंग, और उससे हाँ कंबाइंड फोर्स होती है, फिर उससे कंबाइंड फोर्स लगाते हैं चाँद सूरज, फिर जो है स्प्रिंग टाइड्स आती हैं। मतलब कि स्प्रिंग टाइड हो गया कि हाई टाइड्स के हायर हाई टाइड्स एंड लोअर लो टाइड्स, जो हाई टाइड्स हैं वो हायर होंगी, जो लो टाइड्स हैं वो कम होंगे। व्हेन द ल्यूनर एंड सोलर फोर्सेस आर लीस्ट कोइंसिडेंटल, जब ल्यूनर और सोलर फोर्सेस जो हैं लीस्ट कोइंसिडेंटल होंगी, तो मीन्स द सन एंड मून आर एट एन एंगल, सन और मून एक एंगल पे होंगे, तब क्या होगा कि नीप टाइड्स अकर विच हैव अ स्मॉल टाइडल रेंज, तब नीप टाइड्स आएंगी जिनका टाइडल रेंज जो है वो कम है।